Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today we are going to solve the questions today. तो लाइट चैप्टर जो हमने अभी तक पूरा स्टडी कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, आज उसी के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पे मोर अटेंशन. हो सकता है कोई ऐसी नॉलेज हो जो अभी तक आपको नहीं पता हो, या फिर कोई ऐसे फैक्ट्स वगैरह हो सकते हैं. सो दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उन फैक्ट्स को नोट करें. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लग सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड लग सकते हैं. इट्स ऑन यू. So you need to make sure that you note down every question and you note down every fact जो कि अभी तक आपके लिए unknown था. Alright, and in that way you are getting more knowledge कि किस तरीके के questions आ सकते हैं and light topic से किस तरीके के questions पूछे जा सकते हैं. ठीक है, so that would be the good thing for you all कि आप बहुत ही attention से इस lecture को पढ़ें. ठीक है, you all know that we do prepare for the school examination as well as the Olympiads. ठीक है, और आप जनरल नॉलेज के लिए भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. ऑलराइट, इफ यू वांट डीपीपी एंड स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल. यू नीड टू राइट TTB08 इन दी सर्च बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम ऐप. सो इफ यू डू सो, ड्रॉप डाउन लिस्ट में 8th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा. देन यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, एक्सेस ऑल द DPPs along with the notifications of the video classes. Alright, now see, this is the team which is putting very much of the hard work and effort for you all so that we provide you the quality lectures you deserve. That is the most important thing. So if you are the one who is watching these video lectures for the school examination, or you are the one who is watching these video lectures for the Olympiads, so basically it would be both for them, right? And even if you are watching these lectures for your knowledge, that would be good also, right? And what you need to do is you need to make sure that you share these lectures to everybody, because these quality lectures are free for everyone. So anybody who is not able to afford the quality lectures can watch these video lectures, and he or she can get all the dreams they have set for themselves about their education. Right? So that is the foremost thing you need to do, is to share these video lectures to every one of your friends. Now, in accordance to that, हमने ये जो video lectures आपके लिए provide किए हैं, along with that, we have also make some packages for you all. To access those packages, you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, you will be getting 2 type of packages over there for every class. ठीक है, हर एक class के लिए you are going to get 2 packages. 8th क्लास के लिए फुल पैकेज है, 8th क्लास के लिए टेस्ट सीरीज, राइट? सो बेसिकली देखिए फुल पैकेज में क्या होगा. फुल पैकेज इज दी यू कैन से फॉर स्टूडेंट्स जो कि थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, एंड दे डू ऑल थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, एंड दे आर लाइक गाइडिंग थ्रू दी you can say year long process, right? So that is the main thing. What you will be getting in the package is the study material, recorded in live classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes along with the periodic test papers. So basically ये अपने आप में पूरा full package है. All the things you need are in the package. So if you want to buy them, then you can definitely go to that, right? And even if you want only the test series, then you can join the test series. You will be getting periodic test papers, live classes, and bi-weekly quizzes, right? If you want these packages, you can remember my code CYLIVE to get a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. And that would be good if you call us, and all the queries about these packages should be resolved. Alright, and let's get started. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. Right, revision is the key. I'm telling you again and again. So make sure you do revise for like about 1 hour. ठीक है, अब आपको अपना revision time 1 hour कर देना चाहिए. Revise more frequently. That will be good. Daily revision करते हो तो वो तो और भी बढ़िया है. ठीक है, so you need to do that. Now let's get started. This question is in front of you. This is the question number 1, and ये जो question है वो क्या कहता है? Which of the following is used by ENT doctors? So what is ENT? ENT is ears, nose, throat. ठीक है, so ये doctors जो हैं इन चारों options में से कौन सा object use करते हैं? ठीक है, so tell me what they are using. Are they using convex mirror? Are they using convex lens? Are they using plane mirror or concave mirror? So basically देखिए,
एक ENT डॉक्टर को क्या चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसे डिवाइसेस यूज कर रहा है, सो व्हाट कैन बी यू कैन से द रिजल्ट और व्हाट द रिजल्ट ही वांट। उसे क्या चाहिए होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक बड़ी इमेज उसे दिखाई दे। डेफिनेट सी बात है, राइट। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर चेकअप कर रहा है, ठीक है, वो आईज और यू कैन से नोज एंड थ्रोट, तो वो देख रहा है इनको, इन दैट केस दैट इज ईयर्स नोज एंड थ्रोट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी छोटी सी जगह की उन्हें एक बड़ी इमेज देखनी होती है ताकि वो प्रॉब्लम की जड़ तक जा सके, राइट। सो फॉर दैट केस दे नीड अ बिगर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें ये पता लगाना है कि इन चारों में से बिगर इमेज हमें कैसे मिलेगी, ठीक है, और वो भी बिल्कुल सूटेबल, लाइक कंफर्टेबल वे में हमें मिल जाए। नाउ सी द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या करता है, हम लोगों ने ये देखा था कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी इमेजेस बनाता है, राइट। छोटी इमेजेस बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो हमें तो बड़ी इमेज चाहिए। सो दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर इज कैंसल्ड। व्हाई सो? क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो हमें डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है। वो हमें डिमिनिश्ड इमेज देता है, रियल, इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है कन्वेक्स मिरर से, ठीक है। वही हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस तो बिगर इमेज प्रोवाइड करता है, बट बिगर इमेज तो प्रोवाइड करता है। कन्वेक्स लेंस जो है वो एक केस में हमें क्या करता है, यू कैन से एनलार्ज इमेज प्रोवाइड करता है, बट इट हैज टू बी, बट ये जो इमेज जो ये कन्वेक्स लेंस हमें देता है वो क्या देता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें ये बात पता है भाई, रियल को देखने के लिए, रियल इमेज को देखने के लिए यू हैव टू प्लेस अ यू कैन से अ स्क्रीन आउट देयर। तो आप अगर इमेज देखना चाहते हो यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, यू हैव टू पुट अ स्क्रीन। तो पहले तो क्या होगा, डॉक्टर चेकअप के लिए कन्वेक्स लेंसेज लेगा, फिर वो स्क्रीन सेटअप करेगा, तब जाके इमेज नजर आएगी। तो इट वुड बी लाइक अ वेरी यू कैन से हार्ड वे टू डू थिंग्स, राइट। तो यहां से उसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड इमेज देगा, फिर इन्वर्टेड का प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। तो यहां पर जो ये मिरर है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होने वाला है, सो डॉक्टर इसे नहीं यूज करता, ठीक है। सो हमारा बी ऑप्शन भी कैंसल्ड। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर हम जानते हैं भाई जो ऑब्जेक्ट है उसी का साइज का इमेज भी बनता है, सेम साइज बनता है। सो कोई फायदा तो होगा नहीं, डॉक्टर फिर तो ऐसे ही देख लेगा जब उसे सेम ही इमेज मिल रही है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्लेन मिरर भी कैंसिल हो गया। बचा कौन, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इकलौता ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, एनलार्ज्ड इमेज देगा, ठीक है। उसके अलावा कनकेव मिरर और क्या करेगा, आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। तो हमें क्या होगा, मिरर में ही इमेज दिखाई दे जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, एनलार्ज्ड इमेज दिखाई दे जाएगी, राइट। देयर इज नो नीड ऑफ अ स्क्रीन टू बी पुट सो दैट वी कैन सी द इमेज, एंड दैट इज व्हाई दिस कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय द ENT, ears, nose, throat. All right, so that is the thing, we are using the concave mirror, the doctors are using the concave mirror to look out for the patients, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लें, and then we will be moving up to the second question. All right, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, when the angle between two plane mirrors is 60 degree, how many images will be formed by the mirrors? So I told you how to find that. I told you the formula. मैंने आपको उसमें 3 केसेस बताए थे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, फाइंड आउट 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो हमें थीटा गिवन है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है। दिस 60 degrees are theta here. So let's calculate 360 डिग्री बाय 60 डिग्री, ठीक है। यहां पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट 6 here. 6 हमें मिला। 6 कैसा नंबर है, 6 इज एन इवन नंबर, ठीक है। 6 कैसा नंबर है,
इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए देखो मैंने कौन सा केस आपको बताया था। इवन नंबर के लिए मैंने जो केस बताया था कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करते हैं। सो इवन नंबर के केस के लिए हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री माइनस का 1। दैट मीन्स ये वाली टर्म तो हमें आ जाएगी 6 माइनस का 1, इसका मतलब 5 इमेजेस हमें मिलेंगी जब कभी भी दो मिरर 60 डिग्री पे रखे होंगे। ठीक है, तो हमें कितनी इमेजेस मिलेगी, 5 इमेजेस मिलेगी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फटाफट से इसे नोट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन ये कहता है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल आई कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम पे बना लेते हैं। पता है ऐसे जब आपको क्वेश्चंस मिले तो एक रफ डायग्राम बना लो साइड में खुद के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम का क्लैरिफिकेशन मिल जाए। सो ये मैंने एक रफ मिरर बना दिया है और मैंने एक इंसिडेंट रे इस पे फॉल करवा दी है, एक नॉर्मल बना दिया है। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइट रे है जो फॉल हो रही थी अब वो रिफ्लैक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है हमें। देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो देखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो मुझे ये वाला पूरा बड़ा एंगल पता करना है। ठीक है, ये एंगल मुझे पता करना है जिसमें से मुझे ये वाला एंगल पता है 50। ठीक है, सो वी नो दैट बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना, उसमें से सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो मैंने आपको क्या बताया था, एंगल इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल 50 डिग्री है यहां पर भी 50 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 50, टोटल एंगल दैट इज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जो हमें पता करना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड refracted ray is equals to 50 plus 50. So you are going to get how much, 100 डिग्री। तो मतलब एंगल जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है वो एंगल कितना हो गया है हमारा, 100 डिग्री। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फटाफट से नोट कर लें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इन आवर हाउसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लुकिंग एट आवरसेल्व्स। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब हम खुद को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, जो हम लोग बिल्कुल नॉर्मली मिरर बोलते हैं, दैट इज व्हाट, प्लेन मिरर। बाकी किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज आई एम श्योर कि सभी बच्चे प्लेन मिरर ही यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट हमें हमेशा कैसी इमेज चाहिए, खुद की सही इमेज चाहिए, राइट हमें सेम साइज की इमेज चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बड़े दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर छोटे दिख रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी यूज ऑलवेज प्लेन मिरर। क्यों, क्योंकि हमेशा हमको सेम साइज की इमेज देता है। ठीक है, द इमेज इज ऑफ
सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूज दी प्लेन मिरर। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये करेक्ट है? रिमेंबर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई टोल्ड यू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ना कि ट्वाइस। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane। तो ये तो सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, सो दिस इज ट्रू। ये क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगले देखिए, सी स्टेटमेंट बोल रहा है सम वर्चुअल इमेजेस कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन। ये बोला जा रहा है कि कुछ वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे आ सकती है। आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं लाई जा सकती। यू कैन नॉट ऑब्टेन दोज वर्चुअल इमेजेस ऑन स्क्रीन। हमेशा रियल इमेज ही स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वहीं पे डी ऑप्शन देखिए, अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। नो, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाता है। कोई भी केस उसका ऐसा नहीं है जो कि हमें रियल इमेज दे। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ लेट्स मूव ऑन अप टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, इन पेरिस्कोप हाउ आर द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स अरेंज्ड। हम लोगों ने पेरिस्कोप स्टडी किया था ना। सो देखो, पेरिस्कोप किस तरीके से बनता है? देखिए, पेरिस्कोप कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन पेरिस्कोप में मिरर कहाँ लगा होता है? यहां पर लगा होता है। ठीक है, दिस इज अ मिरर, और एक मिरर यहां पर लगा होता है। ये रहा वो मिरर। ठीक है, एक मिरर, दूसरा मिरर। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे देखें, लाइट रे कैसे आती है? इस तरीके से मिरर पे फॉल करती है। ठीक है, जब वो इस तरीके से मिरर पे फॉल करती है, एज अ रिफ्लेक्शन इट फॉल्स ऑन दिस मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अप टू लाइक दिस। तो यहां से जो भी पर्सन देख रहा होगा उसे इस मिरर में इमेज दिखाई दे जाएगी। तो आप ये देखिए कि ये जो दो मिरर हैं, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। सो ये तो दो मिरर्स हैं, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। आपस में कैसे हैं? ये पैरेलल हैं, ताकि पहले वाले मिरर पे जो लाइट फॉल हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे मिरर पे चली जाए। ठीक है, सो दिस इज व्हाई कि ये जो दो मिरर्स होते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, what is the nature of image formed on the retina of human eye of an object? I told you first of all, human eye में कौन सा लेंस होता है? That is what I want to tell. कौन सा लेंस होता है ह्यूमन आई में? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो देखिए, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में होता है, और जितनी भी लाइट रेज कन्वेक्स लेंस के थ्रू जाती हैं वो रेटिना पे जाके फोकस हो जाती है, राइट? दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ स्क्रीन। रेटिना बिहेव्स एज अ स्क्रीन जब कभी भी उस पे इमेज बनती है। इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। सो दिस कन्वेक्स लेंस इज गोइंग टू मेक रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, और इसी की वजह से, बिकॉज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, इसी की वजह से वी आर एबल टू सी द थिंग्स, बिकॉज दैट ऑल द विजुअल इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन। ब्रेन उसको सीधा करता है एंड देन इट कम्स टू अस कि भाई हमने ये देखा था। ठीक है, सो हमारे ह्यूमन आई में
ठीक है, कौन सी इमेज जो है बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा ही होगा, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ऑल्सो विच लेंस इज यूज्ड, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ठीक है, हमने कन्वेक्स लेंस जो है हमारी आईज में होता है, सो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए एंड देन वी विल मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने आती है और आते ही हम उसे हटा लें, ठीक है, बहुत जल्दी बस आते ही हटा लें अगर उसे, तो भी जो इमेज है वो हमारे आंखों पे बनती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, भले ही ऑब्जेक्ट हटा ली गई हो फिर भी वो इमेज रहती है हमारे रेटिना पे फॉर सम टाइम, दैट इज नोन एज द परसिस्टेंस, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो परसिस्टेंस है वो बेसिकली इस बात के लिए है कि वहां पे इमेज जो है वो स्टिक कर रही है, ऑब्जेक्ट हट गई है फिर भी वो वहां स्टिक कर रही है, एंड दैट टाइम इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड का 16th पार्ट, ठीक है, 1/16 पार्ट जो है उतने देर के लिए वो जो इमेज है वो हमारी आंखों पर रहती है, दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। और अगर कभी भी इस 1/16 डिफरेंस के, यू कैन से कम डिफरेंस पर ही क्या करें, 2-3 जो है इमेजेस अगर हमारी आंखों के सामने चले जाए, सो व्हाट हैपेंस, वो इमेजेस ब्लेंड हो जाती है एंड यू आर लाइक, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मूविंग वो पिक्चर है, ठीक है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन, राइट। एंड परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है उसका वैल्यू कितना होता है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आई डिजीज आर गिवन बिलो। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं किसी एक आई डिजीज के, ठीक है। फर्स्ट देखो, आई साइट बिकम्स फॉगी, आई साइट फॉगी हो जाती है, ऐसा लगता है फॉग है आगे। आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, आई लेंस जो है, क्योंकि हमारा आई लेंस कैसा होता है, क्लियर होता है, ठीक है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बट इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी लाइट रे हमारी आंखों में एंटर कर रही है वो लाइट रे उस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट कर जाए, राइट, एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर इस डिजीज में बताया है कि जो आई लेंस है वो खुद क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, सो बेसिकली वो अब क्लियर नहीं है, वो क्लाउडी हो गया है। थर्ड, देयर इज a loss of vision. Alright, in which of the following are the above characteristics observed? ये चारों आपको यहाँ पे डिफेक्ट बताए हैं, इन चारों डिफेक्ट्स में से कौन सा डिफेक्ट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऊपर बताए गए हैं? सो कैन इट बी मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट? सो देखिए, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। सो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे आप पास की चीजें देख पाते हैं, दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं। इसमें आई लेंस का फॉगी होना, ठीक है, क्लाउडी होना यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं दिखाए जाते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मायोपिया तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आप देखिए प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर आप पास का भी नहीं देख पाते हैं और दूर का भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देयर इज, यू कैन से, नो लॉस ऑफ विजन, आपको दिखाई देता है बट ब्लर दिखाई देता है, तो आपको लॉस ऑफ विजन नहीं हो रहा है, ना ही जो आई लेंस है वो क्लाउडी हो रहा है, ना ही फॉगी आपको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली
ये जो यू कैन से डिफेक्ट है वो सिर्फ इस बात का है कि भाई आप पास और दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, एंड दैट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दी बायफोकल लेंस. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑलराइट, थर्ड ऑप्शन देखिए, हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट जिसमें हम लोग दूर की चीजें देख पाते हैं बट पास की चीजें नहीं देख पाते हैं. आई लेंस इसमें क्लियर होता है, ठीक है, एंड डेफिनेट सी बात है ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो अब बचा कौन हमारे पास, इकलौता कैटरेक्ट. कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर क्या होता है, हमारी आंखों के सामने आई लेंस के आगे क्या होता है, एक लेयर जो है ऑपेक लेयर वहां पे बनती जाती है. सो उस केस में क्या हो सकता है, पार्शियली भी आपकी विजन है वो खत्म हो सकता है या फिर पूरा विजन आपका खत्म हो सकता है, ठीक है. तो इन दैट केस आई लेंस क्लाउडी हो सकता है, आई साइट फॉगी हो सकता है, देयर कैन बी अ लॉस ऑफ विजन. सो दिस कैटरैक्ट इज द डिफेक्ट जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड ये जो कैटरैक्ट है वो इजीली बाय यूजिंग सर्जरी कैन बी यू कैन से क्योर्ड, ठीक है, ये इसको हम क्योर कर सकते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट, 10th क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. 10th क्वेश्चन पर, और ये 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल एंड बैट. तो देखो, आउल एंड बैट ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जो नाइट में इनको विजन दिखाई देता है. सो बेसिकली दे कैन सी एट नाइट, है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि रात में मतलब अंधेरे के टाइम में देयर इज वेरी लेस लाइट, तो जितनी भी लाइट उनको चाहिए, जितना भी उनकी आंखों में एंटर हो सके, मैक्सिमम लाइट जितनी भी अवेलेबल है वो सब उनकी आंखों में एंटर होने के लिए एट दैट टाइम व्हाट दे नीड अ लार्ज साइज ऑफ प्यूपिल, सो दैट जितनी भी लाइट है, मिनिमम से मिनिमम या फिर मैक्सिमम से जितनी भी लाइट है वो सब उनकी आंखों में एंटर हो सके एंड दे कैन सी इन द डार्क, राइट. दैट इज व्हाई दे शुड बी हैविंग अ लार्ज प्यूपिल. सो बेसिकली लार्ज प्यूपिल होना चाहिए, ठीक है. फिर देखिए, लार्ज कॉर्निया, रेटिना विद लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स. सो देखिए यहां पर तीनों ही करेक्ट होने चाहिए. कैसे, लार्ज कॉर्निया होना चाहिए, अगर बड़ा कॉर्निया होगा तो देयर कैन बी मोर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, राइट. फिर देखिए, रेटिना विद लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स, जो रॉड्स हैं वो किस पे जो है डिपेंड करते हैं, बाय द ब्राइटनेस और द डिमनेस ऑफ द लाइट, राइट. तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ रॉड्स होंगे तो इट वुड बी सेंसिटिव टू द ब्राइटनेस एंड द डिमनेस, सो दे कैन सी विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन सी इन द डार्क ऑल्सो. सो बेसिकली तीनों ही चीजें नेसेसरी हैं, ठीक है, तीनों ही चीजें नेसेसरी हैं एनिमल्स जैसे कि आउल और बैट के लिए, ठीक है. सो वी कैन से भाई हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लुक एट द गिवन फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. सो देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, ठीक है. फिर ये इंसिडेंट रे जो है टकरा के वापस चली गई और ये वाला एंगल कितना होगा, वी ऑल नो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है. एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है. सो वी कैन से अगर ये एंगल आई जो है, दिस इज द एंगल आई, ये 40 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल आर भी 40 डिग्री होना चाहिए. सही बात है, 40 डिग्री होना चाहिए. अब देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल वुड बी हाउ मच, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो you are going to get 80 डिग्री, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से भाई हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है.
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ लाइट रे एक्स। तो देखिए ये जो एक्स लाइट रे है ये मिरर पे फॉल कर रही है, ठीक है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स मिरर डायरेक्टेड एट अ प्लेन मिरर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे? MNOP, ठीक है, हमें इन चारों में से बतानी है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है दैट एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि अगर हम यहां पर इस नॉर्मल के अबाउट एंगल देखने की कोशिश करें सो वी शुड बी गेटिंग द सेम एंगल, ठीक है। जितना x बना रही है उतना ही हमें जो है पता चलना चाहिए, है ना, उतना ही एंगल बनना चाहिए, किससे? नॉर्मल से बनना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर मैं P की बात करूं तो P देखो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। ये तो कितना ज्यादा है। एज यू कैन सी x कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। तो इतना ही एंगल होना चाहिए अपोजिट साइड में भी, तभी तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनेगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है तो P तो कैंसिल हो गया, यू कैन सी भाई 90 डिग्री बन रहा है तो ज्यादा ही बड़ा एंगल हो गया। अगर हम O की बात करें तो आप देखिए ये और ये जो x है वो कितना कम एंगल बना रही है और जो O रे है वो कितना ज्यादा बड़ा एंगल बना रही है। तो O भी कैंसिल, O भी कैंसिल, ठीक है। M और N हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। M को देखो जिस तरीके से लाइट रे जा रही है, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो उसी के पास आ गई, राइट, वो तो सेम ही साइड आ गई, नॉर्मल के सेम ही साइड आ गई, ठीक है। इट हैज टू बी ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ होती तो हम एंगल मैच करते। सो दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन, दिस यू कैन से रे इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बची हमारे पास कौन? N। तो एज यू कैन सी कि ये जो एंगल है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पर क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट N इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ X। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितना कह रहा है? लेट्स सी। फॉर अ गिवन इंसिडेंट रे द प्लेन ऑफ द मिरर मेक्स एन एंगल थीटा विद द इंसिडेंट रे, देन द रिफ्लेक्टेड रेज टर्न थ्रू टू थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया है? हमें कंडीशन दिया है कि मिरर के साथ इंसिडेंट रे थीटा एंगल बनाती है। इस तरीके से बना रखे हैं, द कंस्ट्रक्शन इज सच लाइक दैट कि जब ऐसा हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा पे जाती है। सो व्हाट वी कैन से हियर, हमें कैसे पता चलेगा व्हाट इट इज सेइंग इज ट्रू और नॉट? लेट्स सी। देखिए और हमें ये बताना है कि भाई इन चारों में से ऐसा कौन से में पॉसिबल है ना। सबसे पहले पेरिस्कोप से हम लोग देखते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज इन द पेरिस्कोप। हाउ? लेट मी डू इट। ये देखिए ये है हमारे पास पेरिस्कोप, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द मिरर हेयर एट 45 डिग्री, दिस इज द मिरर हेयर एट 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं लाइट रे बनाती हूं। यहां पर जो लाइट रे है वो फॉल करती है, ठीक है। ये लाइट रे मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। So this angle with the mirror is theta here, right? This is theta.
यानी इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अब आप देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ होगा और नॉर्मल ड्रॉ होने से बिल्कुल 90 डिग्री पे ये जो लाइन है ये दूसरे मिरर पे फॉल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2 थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। सो यू आर गोइंग टू गेट कि भाई ये जो इंसिडेंट रे गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है वो 2 थीटा से टर्न हो गई है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न हो गई है, 2 थीटा। एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी 2 थीटा, बिकॉज ये जो एंगल्स पर इसमें पैरास्कोप में लगे होते हैं ये 45 डिग्री में लगे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी लाइट रे इस मिरर पे फॉल करेगी हमेशा 45 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अब क्योंकि 45 डिग्री बनाएगी, सो अगर ये एंगल इज थीटा, दिस इज 45 डिग्री, दिस विल आल्सो बी 45 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल के साथ तो हमें हमेशा कितना एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। अगेन जब ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है सो ये सेम एंगल को फॉर्म करेंगे एंड दैट इज व्हाई इट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों यहाँ पे 45 होते हैं। दैट्स हाउ दे एड अप टू गेट अ 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से टर्न हो जाता है एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन ओनली एप्लीकेबल इन दी पैरास्कोप, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं, पैरास्कोप तो हमारा करेक्ट आंसर है ही है। कैलेडोस्कोप में ऐसा नहीं होता। कैसे? क्योंकि कैलेडोस्कोप में क्या होता है, एक जगह से यू हैव अ पाइप, यू हैव अ एक तरीके से सिलिंड्रिकल, ठीक है, आपके पास सिलेंडर होता है जहां से आप एक तरफ से लाइट को एंट्री देते हो, ठीक है, और जहां से आप लाइट को एंट्री देते हो वहीं पर भी आपके बहुत सारी वो चीजें रखी होती हैं जहां से जो है क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव यू कैन से डिजाइन्स बनते हैं, ठीक है। आप एक होल से देख रहे होते हो, देखो कैलेडोस्कोप में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल, यू आर गेटिंग अ ट्यूब, यहां पर होता है एक होल, ठीक है, यहां से सारी लाइट जा सकती है इसके अंदर, ठीक है, यहां से सारी लाइट एंटर हो सकती है। यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम हियर, यहां से आप देखने वाले हो, ठीक है, यहाँ पे आई होती है जिससे आप देख सकते हो, होल होता है यहाँ से, यू कैन वॉच आउट ऑल द डिजाइन्स हियर। और ये डिजाइन क्यों फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ से लाइट एंटर कर रही है। सो बेसिकली इसमें एंगल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो कैलेडोस्कोप इज इनकरेक्ट। शेविंग मिरर्स की अगर हम बात करें तो दोज आर व्हाट, द कर्व्ड मिरर्स, ठीक है, बिकॉज शेविंग मिरर्स क्या करते हैं, आपके जो यू कैन से स्मॉल एरिया को वो लार्ज करके दिखाते हैं, ठीक है। सो दे आर द कर्व्ड मिरर्स। दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये जो शेविंग मिरर्स हैं इनमें भी एंगल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे भी लाइट रे इन पर फॉल होती हैं उसके अकॉर्डिंग दे मेक द इमेजेस, राइट, बट देयर इज नो नथिंग अबाउट द एंगल्स हियर। सो वी कैन सी इज इनकरेक्ट। और ऑटोमोबाइल हेडलाइट जो हैं वहां पर मिरर होता है एंड वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? देखिए, जो ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स होते हैं उसमें इस तरीके का कनकेव रिफ्लेक्टर होता है जिसके फोकस पे आपका लाइट बल्ब होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, जब ये लाइट बल्ब ग्लो करता है तो सारी की सारी लाइट रेज इस कनकेव से टकराती है एंड व्हेन दे स्ट्राइक द कनकेव सरफेस दे बिकम पैरेलल so that you can get a strong beam of light, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो रूल फॉलो हो रहा है कि फोकस से लाइट रे जब जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल, से ये रूल यहाँ पर यूज हो रहा है। सो देयर इज ऑल्सो नो इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल थीटा कि भाई रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से टर्न हो रही है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द ओनली थिंग, ओनली सिचुएशन या फिर ओनली यू कैन से डिवाइस जिसके अंदर ये पॉसिबल है वो है पैरास्कोप, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट placed 4 meter from a plane mirror is shifted by 0.5 meter away from the mirror. So this is the plane mirror here, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लेन मिरर बना दिया है। And an object, let it be a square,
ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कितना दूर है मिरर से, ये 4 मीटर दूर है मिरर से, ठीक है। अब क्या हुआ, इज शिफ्टेड बाय 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो अब इसका जो नया पोजीशन है वो कहाँ है, कुछ यहाँ होगा, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है 4.5 मीटर, ठीक है। 0.5 ये मिरर से दूर चला गया, पीछे चला गया, ये दिस इज द इनिशियल, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल। सो अब ये क्या हो रहा है, मिरर से दूर चला गया है 0.5 मीटर। सो पहले डिस्टेंस 4 था, अब डिस्टेंस हो गया 4 प्लस 0.5, 4 प्लस 0.5, सो यू आर गोइंग टू गेट 4.5 मीटर। अब क्योंकि प्लेन मिरर है और हम ये बात जानते हैं कि प्लेन मिरर का इमेज का कैरेक्टरिस्टिक वो ये कहता है दैट जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा। तो अगर मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 4.5 मीटर है, तो उसकी इमेज जहां भी बनती है वो कितनी दूर होगी, 4.5 मीटर दूरी होगी, राइट। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, दैट वुड बी द सम ऑफ बोथ द डिस्टेंसेस, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन object and image is equals to 4.5 plus 4.5. So you are going to get how much, 9 meter. So 9 meter is the total distance between the object and the image. और इसीलिए हमारा C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लें इसे। चलिए 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। तो यहां पर आपको गिवन फिगर दे दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ये वाला बड़ा सा एंगल पता करना है, ठीक है, ये एंगल आपको पता करना है। ये एंगल आपको गिवन है, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर। तो यहाँ पे 25 डिग्री है। हम ये बात जानते हैं कि ये जो नॉर्मल होती है ये कितना एंगल बनाती है मिरर से, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री विद मिरर, मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मुझे ये एंगल कैसे मिलेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 25 डिग्री इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ठीक है। 25 प्लस एंगल आई, ये मुझे कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। सो 90 डिग्री के लिए अब मैं यहां से एंगल आई को फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज 90 डिग्री माइनस 25, ठीक है। तो यहां पर मुझे कितना मिल जाना चाहिए, 65 डिग्री, ठीक है। मुझे यहां पे कितना मिल जाना चाहिए, 65 डिग्री। ये जो 65 डिग्री हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला है वो ये वाला मिला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, दैट एंगल आई इज गोइंग टू बी एंगल आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होंगे दोनों। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मुझे यहां पे कितना मिल जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। ये भी 65 डिग्री, इन दोनों को ऐड ऑन करके आई कैन गेट द होल एंगल, राइट। सो द एंगल इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे equals to 65 degree plus 65 degree, that is going to be 130 degree, ठीक है। So we can say that option C
इज द करेक्ट वन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, फटाफट से नोट कर लें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें कहता है हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनता है। सो देखिए रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है, हमें ये बात पता है कि एक प्रिज्म क्या करता है, लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देता है, राइट। सो देखिए जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन वेरियस 7 कलर्स में जो है डिस्पर्स कर देता है। और इसी प्रिज्म का काम कौन करता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स करती हैं इन द एटमॉस्फेयर। सो बारिश के टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, जो कि प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। सो जब सनलाइट उस वाटर ड्रॉपलेट में से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती हैं, डेफिनेट सी बात है, तो वहां पर वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं एंड दे डिस्पर्स लाइट एंड दिस कॉजेज द लाइट, द सनलाइट टू बी डिस्पर्स्ड इनटू द 7 कलर्स एंड यू सी द रेनबो। सो बेसिकली व्हेन रेन ड्रॉप्स एब्जॉर्ब सनलाइट इज द इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होता, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, सो इट विल नॉट बी हैपनिंग, उनका खुद का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन रेन ड्रॉप्स रिफ्लेक्ट सनलाइट, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। व्हेन रेन ड्रॉप डिस्पर्स सनलाइट, दिस इज द करेक्ट वन, जब रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं और सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं इनटू द 7 कलर्स, वी गेट अ रेनबो। व्हेन रेन ड्रॉप्स डिफ्रेक्ट सनलाइट, ये भी हमारे लिए इनकरेक्ट है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो अब हमने हमारे क्वेश्चंस भी काफी देख लिए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.